क्यों पुराना हम है नए अंदाज क्यों पुराना आँखों है बिजलियाँ आँखों में तूफान है डर क्या है और हार क्या हम इतने अनजान हैं हमारे लिए ही तो है आसमान और जमीन सितारे भी हम तोड़ लेंगे हमें है यकीन अंबर से है आगे हमारा ठिकाना हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना जो पैर दुनिया की नहीं अपनी राह पे चल पड़े उन पे अपना स्टाइल तो बनता है फिर देखो कहां पहुंच जाए पार्कोर कंपटीशन की तैयारी गूगल ढूंढेंगे तो मिलेगा थोड़ा मेंटल सा होके सारे That's not true. Everybody चार बाटी करनी लगातार मेरे यार दिल चार जिंदगी के तुझी ले हो जाओ यार ये गाना है रिपीट देखो बजती है बीट न पड़े तुमने भी ले बुला के कोई स्टेप सा बना के हाथ ऊपर उठा के पूरी जान लगा के सारे That's not true. Everybody अब कौमारी भी आवे सुबह सुबह क्या बात है अभी चली जाऊंगी तो कर लेना नाश्ता भी करा ना पेट भरा
आप कुछ कह रहे मैम? नहीं बोले नहीं, कराओ आप कराओ। तेरी चाल शराबी तुझे तेरा प्यार है, तू खड़ा है दूर तुम्हारे ऐसे कोई प्यार है। मेरी चाल शराबी तुझे तेरा प्यार है, तू खड़ा है दूर तुम्हारे ऐसे कोई प्यार है। तेरा बेनी तू लगती मैनू प्यारी नी, तेरा बेनी तू लगती मैनू प्यारी नी। देख तुझे कार मेरे, देख तुझे कार मेरे दिल अंदर होता झगड़ा लिया। के नचनो जी कर काकी कदिए नचना आंदा बाबा के नचनो जी कर काकी कदिए नचना आंदा। I got $500 in cash in case they don't think Amex. She wanted to see me, so now I'm headed to the annex. Sorority house, she snuck me in. She tried to keep quiet, couldn't hold it in. I mean, the bed was too springy, the room was too dingy. You really can't blame me, I found her on Hinky. Life is a movie, but the only acting I do is acting on impulse. No stress pimples, young boy vibing. I would like to thank Tim Cook for taking out the headphone jack on the iPhone. Now we only plug it in my phone. I'm talking baby back cyclone, tall, dark, and handsome. I move steady, stack dubs. I am the one your new girl still loves, negotiating a deal that'll pay me too much. My name under their rooms that my feet haven't touched. No, I got it. Trying to make a play, trying to make it happen. I can see my bars all up in the captions. I'm not Keith Urban, I won't put you in a song. Worldwide dog, yeah, I feel like Shah Rukh Khan. Feel like Shah Rukh Khan. 20,000 fans of my lawn, I can never do no wrong. Yeah, world in my palms. Knew I was the greatest all along. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. 20,000 fans all along, I can never do no wrong. Run it up from Bobby to Milan. See me when you turn your TV on. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. Yeah, running like a marathon. You running on a peloton. Yeah, you standing in that same place, giving me that stank face. Hey, I hope you know I won't respond. I got Anis in the back, on my way to King Street. Uber Black doing 80 and a 50. You getting me covered way before me. You face so loud, shut the condo on the rear view. Yeah, I'm a big screen bunda. All I see is green, you don't see color. Yeah, and my drink real kinda. Bought another bottle for my brother. That's all I got it. Trying to make a play, trying to make it happen. I can see my bars all up in the captions. I'm not Keith Urban, I won't put you in a song. Worldwide dog, yeah, I feel like Shah Rukh Khan. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. 20,000 fans of my lawn, I can never do no wrong. Yeah, world in my palms. Knew I was the greatest all along. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. 20,000 fans on my lawn. I can never do no wrong. Running up from Bobby to Milan. See me when you turn your TV on. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. चलिए, थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू वेरी मच। अभी सभी सबको से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो कॉल लें। आप थक गए हो तो थोड़ा पहले बैठने वाला करा देती हूँ आपको, ठीक है, थकने की वजह से थोड़ा बैठने वाला करा देती हूँ। आप लोग थक गए होंगे इसलिए पैरों के लोअर पार्ट की करा देती हूँ। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी। 1 2 3 4 5 6
सांस भरते हुए जाएंगे, अपने दोनों पंजों को ले जाएंगे जमीन की तरफ और सांस छोड़ते हुए लाएंगे पीछे। इस तरीके से करेंगे हम 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पंजों को एक साथ सांस भरेंगे, आधे में और कोने की उंगली जमीन से टच होते हुए, आधे में सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट साइड की कोने की उंगली जमीन से टच होते हुए एक। अब इसी तरीके से करेंगे हम 6 टाइम। 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसे करेंगे अपोजिट। लेफ्ट साइड से जाएंगे, कोने की उंगली जमीन से टच होते हुए, आधे में सांस भरा, आधे में सांस छोड़ेंगे। सामने 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को खोलेंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए जाएंगे अंदर, सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाहर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पंजों को एक साथ अलग अलग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक पंजे को अंदर कोशिश करेंगे, दबाएंगे अपने पेट में। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम। अब सेकंड पैर लेंगे, हम सांस भरते हुए लाएंगे, कोशिश करेंगे अपने पेट में दबाने की इसको। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरते हुए गए आगे, कोशिश करेंगे पेट में दबाने की इसको, सांस छोड़ते हुए आगे बाहर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। इसके द्वारा जो साधक जो बाहर नहीं जा सकते हैं, टहल नहीं सकते, उनके पास टहलने का टाइम नहीं है, किसी कारण बस कोई भी परेशानी है, तो आपको इसके द्वारा हमारे को बैठने का मतलब टहलने का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम करेंगे राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाइस के ऊपर घुमाएंगे पंजे को। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने हाथ बटरफ्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे अपने घुटने को नीचे जमीन से ले जाने की। सांस भरा, लाए ऊपर, सांस छोड़ते इधर ही। 1 पूरे शरीर नहीं घुमाना है, खाली 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को लेंगे, राइट पैर को लिया अंदर की साइड से, कोशिश करेंगे माथे पे लगाने की। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने पैर को ले जाएंगे सीधा, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लाए ऐसे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। घुमाएंगे से। 1
2, 3, 4, 5, 6. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. रिलैक्स, लेकिन विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार पंजा बाहर, एक बार अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चलाएंगे चकला। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर को लेंगे राइट पैर की थाइस के ऊपर, घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इसे घुमाएंगे, नीचे लेंगे सांस भरते हुए, पूरा शरीर नहीं हिलना चाहिए, ओनली इसका मूवमेंट। 1, हाफ बटरफ्लाई। 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। घुमाएंगे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब चाइल्ड केयर। 1, 2, 3, नाक के पास। 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। घुमाएंगे से, चक्कर चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने पैर को लेंगे, अपने हाथों को लॉक करेंगे, रखेंगे घुटने के नीचे, ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। अब घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। अब एक पंजा आगे पीछे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट पैर की उंगलियों के ऊपर रखेंगे, राइट पैर को सर ले जाएंगे ये, और हमारा सर पीछे करेंगे। होल्ड। रिलैक्स, सामने आगे सेंटर में। अब पैर करेंगे चेंज, इसे ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सर अपोजिट साइड में। 1, चेंज, चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारा पैर का फुल पैकेज है। इसके द्वारा हमारे पंजों में, घुटनों में, टखनों में, पिंडली में, हिप्स में, थाइज में, हमारे टांगों में, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है लोअर पार्ट की, जो हमने ये पूरा पैकेज है, इसके द्वारा आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो हम बैठ के करते हैं मरकट आसन। आपने लेट कर तो करा ही है, तो मरकट आसन दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, पंजे घुटने एरिया सब मिले हुए ले जाएंगे एक साइड में, राइट साइड में, सर अपोजिट साइड में, और लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, आएंगे सेंटर में। अब फिर इसको दोनों को, पंजे, घुटने, एड़ी, टखना सब ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सर अपोजिट साइड में। ये कमर दर्द के लिए है, और हमारे हिप्स पर असर पड़ रहा है, थाइस पर पड़ रहा है, टूनियों पर पड़ रहा है, हमारे बेली फैट पर पड़ रहा है। लगाएंगे कपालभाति के 12 स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में। अब जैसे हम लेट कर ही करते हैं, सेम वही प्रोसीजर करना है जैसे हम लेट लेट के करते हैं। दोनों पैर को खोलेंगे, राइट पैर का पंजा राइट साइड में, घुटना, और लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे पर, सर अपोजिट साइड में लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। आएंगे सेंटर में,
अब यही के लिए हम दूसरी साइड से करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जो लेट कर करते हैं। लगाएंगे कपाल भाती तो रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये अब हमने कर लिए लोअर पार्ट्स की करें हमने, तो हम थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। इसको करेंगे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथों को लॉक करके उसके ऊपर पैरों के दोनों पंजों को पकड़ेंगे और करेंगे जैसे कि तितली फड़फड़ा रही है। इसके द्वारा बटरफ्लाई के द्वारा जो साधक बैठ नहीं पाते हैं, इसकी मात्रा जितनी थोड़ी थोड़ी सी हो, अभी इतना इतना सा करें तो कोई बात नहीं, जितना हो जैसे हो ऐसा ऐसा इसकी मात्रा बढ़ाएं, तो आप देखेंगे इसके द्वारा आपके भुगतानों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, यौन संबंधी समस्याएं, प्रोस्टेट, पाइल्स, इचिंग, यूरिन इन्फेक्शन, बहुत सारे काफी सारे रोग हैं जो जो आपको कुछ तो पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे, तो वो हमारे कब में गायब हो जाएंगे, आपको पता भी चलेगी। तो इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 6 47 48 49 50 51 52 53 54 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को खोलेंगे। अब राइट हाथ को उठाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का पंजा पकड़ेंगे और दूसरा हाथ हमारा ऊपर करेंगे होल्ड। अब लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हैंड का पंजा, दूसरा हाथ ऊपर। अब इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके द्वारा बेली फैट बहुत तेजी से कम होता है, हमारी यहाँ की सेहत खराब हो जाती है, लेडीजों की मोटापा बढ़ता है, और साथ में हम जो ऐसे ऐसे हाथों को घुमा रहे हैं तो हमारा सर्वाइकल दूर हो रहा है, हमारी यहाँ का बेली फैट कम हो रहा है, चर्बी पर असर पड़ रहा है। अभी से नीचे नीचे लेंगे 1 2, इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं जिन लोगों का बेली फैट बहुत तेज है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट पैर का पंजे, लेफ्ट पैर का पंजा सामने ले जाएंगे, ऐसे देखेंगे पीछे 1। अब लेफ्ट से राइट का 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी कोई हम आसन कर रहे हैं, उस आसन का हमारा जहां पर प्रभाव पड़ रहा है। आप कुछ कह रहे हो अंकिता? कुछ बोल रही हो अंकिता? नो मैम, कुछ नहीं। हम्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ओके, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो अगर हमारा जो भी कोई आसन कर रहे हैं, हमारा जिसका प्रभाव जहां पर पड़ रहा है, तो वहां से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है।
तो अब हम करेंगे चक्की आसन, दोनों, ये भी बेली फैट के लिए। सांस भरेंगे, कोशिश करेंगे अपने पंजे से बाहर लेने की। 1, सांस छोड़ते आएंगे आगे। 2, इसको हंसते हंसते करते हैं हम। करेंगे अपोजिट, हंसते हंसते, हाथ से एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि आप चक्की है, चक्की से आप गेहूं पीस रहे हो, आपको थकान हो रही होगी, तो हम हंसते हंसते करेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी ना, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे, हाथ से एक्सरसाइज भी प्लस। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को बीच में साइड में ले जाएंगे। अब चलाएंगे चक्कू, गर्मी हो रही है, आपको गर्मी लग रही है तो आप ऐसे करिए, हम आपको बोट में घुमाते हैं, चलते हैं जहाँ पर नदी है उसमें घूमेंगे, ऐसे करके मस्त आते हुए, लहराते हुए, और देखेंगे नजारा आसपास का, हंसते हंसते। चलिए पॉजिटिव करेंगे। रिलैक्स, पहले मैंने हंसते हंसते आपसे चक्की पिसवाई ताकि आपको थकावट महसूस नहीं हो, उसके बाद मैंने आपके पसीने आए होंगे तो मैं बोट पर घुमा ली, गर्मी हो रही है, काफी जगह पर पानी भरा हुआ है, और आपने बोट की भी सैर कर ली, आपको काफी आनंद आया होगा। तो अब हम करेंगे जानु सिरासन। राइट पैर, लेफ्ट को खोलेंगे, राइट को हम लगाएंगे इसके लेफ्ट के थंब से, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे, ऐसे कोशिश करेंगे अपने घुटने को जो मिला सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर को खोलेंगे, राइट को खोलेंगे, लेफ्ट का पंजा राइट के नितंब से लगाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार और लेंगे। हर आसन के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी है, उगली हुई सांस में हमें कोई भी आसन नहीं करना है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस भरेंगे और ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते आएंगे आगे, कोशिश करेंगे अपने पंजे को पकड़ने की और माथे को घुटने से लगाने की, जिसका लग जाता है वो लगाए, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। कमर दर्द वाले आगे झुकेंगे और हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे। अब इसका उपासन करेंगे हम कोणासन। पैरों के पंजे के ऊपर, एड़ी के ऊपर पूरा वजन, और हमारे हाथों के ऊपर देखेंगे पीछे, पूरा वजन हमारे पैरों की एड़ी पर और हमारे पैरों हथेली पर। तो इसके द्वारा हमारे हाथ पूरे संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और हमारे पैर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। कमर दर्द में थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, इनकी समस्याओं पर आराम, हमारी आंखों की रोशनी पर पड़ता हुआ महसूस करें। रिलैक्स, इसको करेंगे जल्दी जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार और भरेंगे।
ये हमने करा कोणासन। अब हम करेंगे, सभी साधक बैठेंगे, आएंगे अपने पैर के पंजे के ऊपर, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को पकड़ेंगे, राइट पैर का पंजा लेफ्ट से लेफ्ट का, और शरीर को ले जाएंगे पूरा। ये हमारा सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, बेली फैट, कमर दर्द, इन सब पर पड़ता प्रभाव करेंगे महसूस। आएंगे इसी तरीके से, और जो इस तरीके से नहीं जा सकते हैं, दूसरा तरीका ऐसा है, ये हमने ऐसे पकड़ा और फिर इसको ऐसे पकड़ा, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक दूसरा हाथों को ले जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे पीछे, रिलैक्स। एक इस तरीके से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे पीछे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे वज्रासन में आ जाएंगे। एक आसन ऐसा है जो कि हमें खाना खाने के फौरन बाद करना चाहिए। अगर हम इसमें 10-15 मिनट बैठ जाएंगे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम, जो उसके हमारे पॉइंट होते हैं हमारे पैर के नीचे होते हैं पिंडलियों में, तो इस आसन में हमारे को बैठना बहुत जरूरी है। इसके दौरान हमारा खाना जल्दी से पच जाता है, और हम खाना हमें चबा चबा के खाना चाहिए। अगर हम चबा चबा के नहीं खाते हैं तो वो खाना हमारा पचता नहीं है, वो पचता नहीं। फिर आप लोग कहेंगे कि मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ, 1 रोटी खाती हूँ, फिर भी मोटी हो रही। वो हमारा चबा के खाना नहीं खाया गया होता है, तो हमारा एक कोने में सड़ता है। वो जो सड़ता है उसके द्वारा क्या होता है, वो फैट उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में, इस वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है। ये रीजन नहीं है, तो आपको खाना चबा चबा के खाना चाहिए। चलिए हम चलते हैं, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आप आ जाएंगे सामने, देखेंगे सामने कोनियों को जमीन की तरफ, दृष्टि सामने, हमारी थाइज हमारी एड़ी से मिली होनी चाहिए। और जो साधक होशियार है तो वो अपने को कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं। रिलैक्स। ये मधुमेह के लिए रामबाण इलाज है। इसकी जो मधुमेह के रोगी है, इसकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दे। साथ में हमारे पेट से संबंधित समस्याएं दूर होती है, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। अब हम राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, लेफ्ट को नीचे, और अपनी नाभि के ऊपर कप्सा बना के सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए देखेंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हमारा राइट हाथ जाएगा नीचे, लेफ्ट ऊपर जाएगा। जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट रखेंगे। तो चलिए सांस भरेंगे, क्योंकि देखिए हमारे लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है और राइट साइड में हमारे लीवर है। तो हमारे को जब हम प्रेस करते हैं, अपने पेट के ऊपर दबाव डालते हैं, तो वो हमारी एक्टिव होती है, तो इसके द्वारा हमारी समस्या फिर हमारी सॉल्व हो जाती है, जो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए करते हैं, सांस भरेंगे, देखेंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये अब हम 3 तरीके से बता दिए। चौथे तरीके से हम अपनी उंगली को, बड़ी उंगली को हम अपनी नाभि के अंदर लगाएंगे। कुछ लोग अपने अंगूठे को लगवाते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं तो उंगली लगाती हूँ। हम साथ अपनी नाभि पर लगाएंगे, उंगली को अंदर दबाएंगे। इसके द्वारा नाभि जिनकी खिसक जाती है, नाभि से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सॉल्व होती है। तो चलिए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दबाव देंगे और महसूस करें हमारी नाभि पर जो प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। राइट हाथ को ले जाएंगे ऊपर, लेफ्ट को
ऐसे करके देखेंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे सामने, दोनों हाथों को ले जाएंगे, सांस भरेंगे, हमारी गर्दन और हाथ एक साथ आएंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने, करेंगे सुखकासन। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो हमारा मस्तिष्क की तरफ रहता है। इसके द्वारा हमारे माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सर दर्द दूर होता है, हमारा मस्तिष्क तेज होता है। एक साथ आएंगे ऐसे ही, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इसका उपासन करेंगे, सुप्त वज्रासन। दोनों हाथों को रखेंगे साइड में और कोहनियों को स्ट्रेट बनाकर इस तरीके से और ले जाएंगे पीछे, बीच का पोर्शन हो रहेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने शशकासन करा, हमने सुप्त वज्रासन करा। अब हम करेंगे राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को इस तरीके से ले जाएंगे, हमारा ये जो कर्व सा बना देंगे। राइट, जो हमारा पैर उठा हुआ वही हाथ जाएगा ऊपर, और जो नीचे है वो नीचे से पकड़ेंगे, करेंगे लोग और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। इसका बेनिफिट भी वही है, हमारे डायबिटीज की समस्या दूर होती है और हमारा पाचन तंत्र सही होता है, गैस की समस्या दूर होती है। हमारे हाथों के एक्वाप्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं पीछे से, हमारे कंधे पर पड़ रहा प्रभाव, हमारी साइडों की चर्बी पर पड़ रहा प्रभाव। तो जहां जहां हमारा प्रभाव पड़ रहा है वहां से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सोल्व होती है। तो चलिए करेंगे, कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे इस तरीके से, जो है जो एड़ी पे बैठे थे उसको भी थोड़ा सा कर लिया ऐसे। अब हमें क्या करना है, जो पैर हम जो हाथ हमने पहले उठाया था अब वो हाथ जाएगा पीछे, और जो नीचे है वो सांस भरते हुए जाएगा ऊपर, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे और देखेंगे हम पीछे, जैसे कि हमारे शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया है, और इसका इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, आएंगे अपनी स्थिति पर। अब इसी ऐसे ही रखना है। अब ले जाएंगे सामने ऊपर, करेंगे पर्वतासन, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को पकड़ेंगे साइड से, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को लगाएंगे घुटने से और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब सेम यही क्रिया जो हमने इस पैर से करी है वो दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे और राइट पैर को इस तरीके से ले जाएंगे, और अब हम करेंगे गोमुखासन, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और वही सब चीज
जो हाथ अब हमारा ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा। करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति की तो रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब दोनों पैरों से, पैरों के पंजों को पकड़ेंगे दोनों हाथों से, माथे पर लगाएंगे, करेंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर को, लेफ्ट पैर को करेंगे सीधा, राइट पैर को मोड़ेंगे और जो पैर हमारा लेटा हुआ है उसको ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते उसी पैर को पकड़ेंगे, सर अपोजिट साइड में करेंगे वक्रासन, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। ये सारे आसन जो बैठने वाले कराए हैं सबके बेनिफिट सेम है। और बाकी आप ये देखिए जहाँ हमारा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां से रिलेटेड जो समस्या है वो आपकी सॉल्व होगी। लगाइए कपालभाति के स्ट्रोक। आएंगे पूर्व स्थिति। अब पैरों को चेंज करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे, सर अपोजिट साइड में लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम एक वक्रासन एक इस तरीके से करा, दूसरा एक इस तरीके से भी होता है, पैर को इधर ले गए और इधर करा और देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। ले गए ऊपर। अब ये चीज हम दूसरे पैर से भी करके दिखा देते हैं, इधर से भी। रिलैक्स। अब देखो इस साइड पैन की रियाज है, हमारे पेट पर दबाव पड़ा है तो पैन की रियाज एक्टिव हो रही है, और इस साइड में हमारा लीवर है तो इधर हमारा दबाव पड़ा तो इधर लीवर से रिलेटेड जो समस्या होती है वो दूर होती है। तो चलिए अब हमने आज बैठने वाले आसन कराए, अब हम देखते हैं समय का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए आज हमारे खड़े होने वाले आसन में हो पाए हैं, तो हम देखेंगे दोपहर के सेशन में लेंगे। और सभी साधकों से निवेदन है, बीनू जी, रजनी जी अपना वीडियो खोल लें। अब हम चलते हैं भस्त्रिका की तरफ। जैसा कि आपको मालूम ही है, सबसे पहले हमें भस्त्रिका करनी चाहिए। ऊपर, साइड में, चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है, इसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो ब्लड प्रेशर हाई वाले हैं वो स्लो स्पीड में करेंगे। इसकी 3 विधियाँ होती है, एक स्लो स्पीड में, उससे थोड़ा तेज, फिर उससे ज़्यादा तेज। और जो ब्लड प्रेशर हाई वाले हैं तो उनको तो नॉर्मल हल्के से हल्के करना है, उससे थोड़ा वैसे वाले। और जो तेज वाले
वो तेज कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अपनी मतलब अपने मर्द के हिसाब से करना है। और इसके द्वारा हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, हमारे पूर्ण शरीर में हमारे ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है, किसी भी तरह की कोई गांठ होती है वो निकल जाती है, हमारी जो मसल्स डेड स्किन है वो जो हमारे डेड स्किन है वो हमारी हट जाती है, न्यू हमारी स्किन आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी डेड के हम प्राणायाम नहीं करेंगे, हमारी जो डेड स्किन है वो नहीं हटेगी, डेड मसल्स नहीं हटेगी हमारी, तो वो हमारे जमती रहेगी, जमने के बाद वो हमारी गांठ का रूप ले लेगी, तो हमारे को परेशानी होगी। और इसके द्वारा जो जैसे कि हमारे हम नाली में कचरा भर रहा है तो झटके के साथ पानी डालते हैं और अंदर से कूड़ा निकल जाता है, सेम वही प्रोसीजर है। हमारे शरीर में किसी तरह की कोई गांठ है, कोई परेशानी है, तो वो हमारे शरीर में हम भस्त्रिका के द्वारा वो परेशानी को अपने शरीर में से निकाल देते हैं। तो योग भस्त्रिका हम करेंगे कपालभाति। उसके लिए सिर्फ ब्लड प्रेशर लो वाले हाई वालों का ध्यान रखना है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या है, अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और सांस को छोड़ने पे ध्यान देंगे। जैसे कि कोई कैंडल रखी है उसको हम नाक से बुझा रहे हैं, सिर्फ बुझाने पर, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है, लेने पर हमें ध्यान नहीं देना है। साथ में जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो स्लो स्पीड में करेगा, और जिसका ऑपरेशन हुआ वो 6 माह तक नहीं करे, 6 माह के बाद करेंगे। और पीरियड की जिनको पीरियड चल रहा है वो नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, और अल्सर वाले रोगी नहीं करेंगे। तो करेंगे हम कपालभाति। अब हम लगाते हैं भजन, 5 मिनट का करेंगे कपालभाति। चलिए बीना जी आप लगा दीजिए, वो क्या नाम है, अंकिता जी आप लगा दीजिए। आंखों को बंद करके करेंगे तो इसके द्वारा ये जैसे कि हम हमारा कंसंट्रेशन पूरा अपने उस पर रहता है, इधर उधर नहीं जाता, हमारा ध्यान भटकता नहीं है, तो पूरा हमें बेनिफिट मिलता है। तो चलिए अंकिता जी चलाएंगी। क्या हो गया अंकिता, आज चल नहीं रहा है भजन, आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपका, अनम्यूट करो। क्या हो गया अंकिता, मैं चलाऊं क्या? अच्छा चलो मैं चलाती हूँ, ठीक है। मेरी बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तुम इतना मत करियो सिंगा, ये करे लग जाएगी, नजर लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला तोरी मेरी चाल, तोरी मेरी चाल, तुम इतना
नजर लगी जाएगी, नजर लगी जाएगी मेरे बाकी बिहारी का। तेरी मुरलिया पे मन मुरट कर प्यारा लगे तोरा नीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा नीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा नीला। तोरे उंगर वाले बाल, तोरे उंगर वाले बाल, तुम नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। चोरी कमरिया पे मोरा कटका। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने करा कपालभाति। अब हम करेंगे बाह्य प्रणाम। बाह्य प्रणाम में हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। छोड़ने के बाद अपने अनस पार्ट को, जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं, उसको ऊपर लेंगे। अपनी नाभि को लगाएंगे कमर से, अपनी चिन्ह को लगाएंगे कंठमूल से, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला ना लगाएं। मूल बंद के द्वारा हमारे यौन समस्याएं दूर होती है। हमारी गुप्तांगों से रिलेटेड ईचिंग, प्रोस्टेट, पाइल्स और भी काफ़ी समस्याएं होती हैं, वो सब दूर होती है। और उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले से, फेफड़े से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होती है। अब इनमें विपरीत कंपनी में खोलना होता है, पहले जलंधर बंद, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। एक बार और लगाएंगे। रिलैक्स, वंस मोर अगेन। रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। ये एक प्राणायाम नहीं है, ये क्रम के साथ बता रही हूँ, उसी हिसाब से आपको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम नहीं है अग्निसार क्रिया, ये एक क्रिया है। इसकी त्रिबंध से मूलबंध भी त्रिबंध भी कहते हैं, महाबंध भी कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया है, क्योंकि हमारे अभी पार्ट्स टाइट हो गए हैं, उसे थोड़े से लूज करने के लिए। तो चलिए करते हैं। पेट को आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं घुमाना है, जैसे कि हमें मतनी की तरह हम कोई दही से मठे को भिगो रहे हैं, इस तरीके से करना है। और जो अपने इस तरीके से नहीं कर सकता, वो ऐसे से भी कर सकते हैं। रिलैक्स, वंस अगेन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, एक बार और। रिलैक्स। अब इसके द्वारा, जैसे हम आसनों के द्वारा अपने शरीर को फुर्तीला बनाते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, सेम इसी तरीके से हमारा जो हमने अभी अग्निसार क्रिया करी है, इसके द्वारा अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, और प्लस हमारे समस्त पेट के रोग जो होते हैं दूर होते हैं। अब हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी में क्या है, हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। फिर गले से संकोचन करना है, गले से हमें सांस को खींचना है। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला ना लगाएं।
जुगलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकाल देना है। एक बार और। एक बार और। जुगलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। अब हम हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, और जो हमारा सलाइवा बन गया उसे हम अपने पेट में लेंगे। और इसके द्वारा हमारे जो फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होती है, फेफड़ों में हमारे बलगम जम जाता है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड हमारी समस्या होती है, गले से संबंधित जो हमारी समस्या होती है, खांसी जो काम होता है, वो हमारी समस्या दूर होती है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमें बाएं नासिका से सांस लेनी, इनहेल करना है, दाएं से एक्सहेल करना है, लेफ्ट राइट से, और फिर दोबारा यहीं से लेना है और फिर लेफ्ट से छोड़ना है। ये हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। तो अब बाएं से ही चालू करनी होती है और बाएं पर ही लास्ट में खत्म करनी होती है। चलिए, और अगर हम बाएं से सांस ले रहे हैं और उसे होल्ड कर रहे हैं, फिर दाएं से छोड़ने हैं, फिर उसे होल्ड कर रहे हैं, फिर दोबारा से दाएं से लेकर फिर उसे होल्ड करना है, फिर बाएं से छोड़ना है, फिर इसे रोकना, तो ये क्रिया हो जाती है नाड़ी शोधन क्रिया। तो इसके द्वारा, और नाड़ी शोधन वो नहीं करेगा जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, बाकी कर सकते हैं, पर नाड़ी शोधन में और हमारे अनुलोम विलोम में सिर्फ यही इतना ही अंतर है। उसमें थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा पड़ता है। मोस्टली अब नाड़ी शोधन कुछ नहीं कर पाते हैं तरीके से, तो इसलिए मना कर दिया जाता है। तो अनुलोम विलोम पर ही फोकस किया जाता है। तो चलते हैं। और अनुलोम विलोम हम खाली पेट की जरूरत नहीं है, इसे भरे पेट में भी कर सकते हैं। इसे जब मर्जी कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ कर सकते हो, अपने बेड पर लेट के कर सकते हो। इसके भी ये हमारा जो प्राणायाम है, इसमें इतना फायदा है कि आप इसे सुबह शाम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कब कब में आपकी कितनी सारी समस्याएं थी वो दूर होगी। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। भजन लगाइए। प्यारा लगे तोरा काला पटका, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला पटका, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा काला, तोरे गले बजंती माँ, तोरे गले बजंती माँ, तुम इतना नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, मेरे बाबे बिहारी राज मेरी आशुरा, नजर लग जाएगी। रिलैक्स। मोहे लागे वृंदावन। चलिए हम करते हैं भ्रामरी। समय का ध्यान रखते हुए हमें कम करना पड़ रहा है। 2 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, एक फोrehead पर, एक नाक के पास, और अंगूठे से करेंगे अपने जो कान का हिस्सा उठा हुआ उसको करेंगे आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण। ओ
हाथों को करेंगे रब। इस सुषमा को लगाएंगे अपने आंखों पर, चेहरे पर, नीचे से ऊपर की तरफ, पूरे शरीर पर। चलिए हम करेंगे प्रणव प्राणायाम। प्राणायाम बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषि दया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को करेंगे रब। इस सुषमा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि जो हमने थोड़े से आसन करे हैं, प्राणायाम करे हैं, इसके द्वारा हमारे शरीर में जितने भी रोग थे और जितनी भी नकारात्मक सोच थी वो सब निकल गई है। और हमने ऑक्सीजन जो ली है उसके द्वारा हमारे शरीर में सकारात्मक सोच आ गई है, एनर्जी आ गई है। हमें उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें जीने के लिए नया एक दिन और साथ में इतना सुंदर शरीर दिया। हमें इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए उन्हें कि हमें हमारा समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर हमें माध्यम बनाकर देश विदेश के लोगों से हमें उन्होंने मिलवाया है। तो हमें उनका बारंबार नमस्कार करना चाहिए और हमें उनका भी नमस्कार करना चाहिए जिन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर हमारा समय बचाया और हमें ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने का एक माध्यम दिया। ओम शांति शांति शांति। चलिए थोड़ी ऐसे एक्सरसाइज कर लेते हैं हंसते हुए। चलिए सभी साथों से माफी मांगते हुए, कुछ गलती होगी, कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए क्रॉसिंग में सींग दिखाते हुए हनुमान वाली हंसी, काली माता वाली चलिए बहुत देर से हंस रहे हो सभी साधक। चलिए चैन लगाइए, चैन खोल दीजिए। एक बार और चैन खोल दीजिए। चलिए 108 हम माला जप लेते हैं और आप देखिएगा, सिर्फ मैं काउंटिंग करूंगी, आपको देखना है। एक बार इधर कराऊंगी मैं, एक बार इधर कराऊंगी, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार ऐसे ऐसे ऐसे। आप खुद ध्यान रखिएगा, 10 बार कराऊंगी। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82,
राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, 1 2 3 4 5 6 7 8, राम राम 108। चलिए हमने राम राम की माला जप ली। अब हम थोड़ा से आपको बता देते हैं ताकि आप लोगों को पक्का याद हो जाए। ये क्या है? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, सूर्य। ठीक है। और हमने अंगूठे को सेकंड उंगली से मिलाया, मतलब हमने सूर्य को मिलाया वायु से, तो ये ज्ञान मुद्रा हो गई। और इसी को अंदर कर लिया हमने ऐसे करके। ये मैं दिखा रही हूँ, हाथों को ऐसे रखना है, दिखाने के लिए कर रही हूँ। अंदर कर लिया तो ये होगा हमारी वायु मुद्रा, जिसके द्वारा हमारे गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। और ये हमारा आकाश तत्व है, इसके द्वारा हमारे कान की समस्याएं दूर होती है। और इसको हम नीचे कर लेते हैं, तो ये जो हमारी चीज हमारी बड़ी हुई है वो उसे कम करती है। ठीक है। अब दूसरा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा को नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा सूर्य मुद्रा। और यहाँ साथ में ये अभी दूसरी वाली बताई थी मैं, तीसरी बीच की नीचे लगाई तो वो शून्य मुद्रा हो जाता है। ठीक है। और लास्ट की हमारी वायु मुद्रा है, वो हाँ वरुण मुद्रा, सॉरी वरुण मुद्रा, इंद्र मुद्रा। इसके द्वारा हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम सही होती है। जो हम जैसे हम आप पढ़ते थे, आप लोग कहते थे ना सुसु करिया मैम, तो मतलब ये उसको बैलेंस करती है। हमें प्यास लग रही, कहीं पे पानी नहीं है, तो आप इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। और नीचे कर देते हैं तो ये जो हमारा तत्व बड़ा होता है, वायु मतलब जल तत्व बड़ा होता है, तो इसको घटाता है। अब थोड़ा सा हम पॉइंट बता देते हैं। ये आंखों का पॉइंट है, ये जो हमारे गुप्तांगों से यौन संबंधी समस्या है उससे रिलेटेड है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये कमर दर्द के लिए है, ये हमारे कान के रोग के लिए है, ये हमने थायराइड के लिए बताया था आपको। और ये हमारे जो हमारी यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, ये उसके पॉइंट यहाँ होते हैं। जब भी तो हम ऐसे ऐसे कराते हैं। अभी आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है ताकि आप भूल जाएंगे। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। राधे राधे। थैंक यू सर। अंकिता जी का धन्यवाद, वो रोज़ हमारा जुम्बा कराती हैं, थोड़े समय के लिए हमारा क्लास को मैनेज करती है। उनका राधे राधे मैम। एक बार धन्यवाद। राधे राधे। वेलकम मैम। ओके। बाय मैम।